Aramal, all are present from your group. बाकी लोग अपने Yes, बंद कर sir. रहे हैं माइक कैमरे. सिर्फ इस ग्रुप के मेंबर अक्षय गुप्ता है, अरमल No, शेखर है, आरुषि जैन है, sir, one तरुण is और absent, sir. कौन एब्सेंट है? Sir, Deepak Sisodia. हाँ, दीपक तो खैर शादी कर रहा है, बहुत लंबी शादी. चलिए, तो अब कौन रह गया? जीशान है सियर. Yes, sir. चलो, जीशान है, तरुण है, आरुषि. Yes, Arushi, sir. are you there? Okay. Yes, sir. Aromal is here and Akshay is here. Okay, you can start your presentation. Yes, sir. Good afternoon, respected teachers and my fellow classmates. Today we would be presenting our case on OYO rooms. The objective of this case study is to get a deeper understanding of the operations of OYO, their business model, and a look into the Indian hotel industry, and to get a deeper understanding of the contributing factors to the success of OYO. Uh, Arumal, can you switch the slide? Yeah, so these are the key points that we would be covering in our today's presentations. I would hand it over to Tarun. He'll take it from here. Good afternoon, sir. Good afternoon, my dear friends. Sir, my topic is the Indian hotel industry. The professional hotel industry in India was established by the British. Cities like Kolkata, Mumbai, and Delhi. India had a huge booming hotel industry. The India hotel industry is growing at the fast pace. The Indian facilitated the business through economics reforms, change in different taxation and policy, allowing the foreign direct investment. These all things will be done by the government. The role played by the Indian hotel entrepreneur is establish the hotel and taking those hotels to the global market has been discussed. Like Ritesh Agrawal made his own company like OYO, and he will extend this company to the global market. Tarun, please stop ये introduction छोड़ दो, ये everyone knows of this. जी सर. Last में जो barriers of entry है उसको बताओ थोड़ा मुझे. हाँ सर. Poor infrastructure and facilities and scarcity of land. सर जैसे कि सर आप अपन जैसे कभी भी किसी होटल में एंटर करते हैं and we saw the veranda and the hotels as well as room also. सर अपन देखते हैं कि रूम्स की फैसिलिटीज कैसी हैं सर, वहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं, इट विल बी क्लीन एंड क्लीन है या नहीं है सर, वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एडेड होती है सर. ये सारी फैसिलिटीज है सर. किसने बनाया ये स्लाइड? सर वी ऑल प्रिपेयर सर. नहीं, ये स्लाइड पर्टिकुलरली दिस स्लाइड सर ये तो मैंने बनाई है सर, खुद नहीं. बेरियर्स ऑफ एंट्री आप जो बोल रहे हो तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में सुन रहा हूँ यार. दिस इज नॉट ऑफ एंट्री सर. वो सर मैंने इस हिसाब से लिया था सर, जैसे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंटीरियर है सर जो होटल का सर, उसको देखते हुए सर वो चीज मैंने रखी है. नेक्स्ट स्लाइड कर दो. जी सर. स्लाइड सर. इसका इस टॉपिक का जो कंक्लूजन निकला है सर, वो ये निकला है कि इट इज क्लियर दैट द डिस्कशन दैट द इंडियन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट फास्ट रेट as we all know that, and the global markets may others been accused of lacking the service quality which does not match their hotel classification start category. It means that sir जो भी होटल्स है सर वो अगर अच्छी फैसिलिटीज नहीं देगी तो सर जो कस्टमर्स है वो उनको स्टार रेटिंग अच्छे नहीं देंगे. जो फीडबैक्स है सर वो आने चाहिए अच्छे वाले, वो अच्छे नहीं आएंगे सर. तो इसलिए सर होटल्स जो सर स्टार कैटेगरीज में सर आनी चाहिए वो आएगी नहीं सर. That's why sir पहला पॉइंट तो ये होता है. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर द होटल क्लासिफिकेशन प्रोसेस टू प्राइवेट प्लेयर्स so that the more transparency is ensured and also deserving hotels get the higher star rating. सर इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है सर वो अपने तरफ से सर जो थोड़ा बहुत जो लोड ज्यादा है सर वो प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर करती है सर. क्यों करती है सर? इसलिए कि सर प्राइवेट कंपनीज को अच्छे से हैंड ओवर करके इसको थोड़ा अच्छे से डेवलप्ड करे सर. दैट्स व्हाई सर ये चीज में बोली गई है कि फिर से समझाओ. हाँ सर इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट है सर वो जो इंडियन होटल इंडस्ट्रीज है सर वो जो होटल्स का जो क्लासिफिकेशन है सर वो प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर देती है, प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर कर देती है. गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन करता है क्या?
सर गवर्नमेंट सर इसमें इंक्लूड करती है सर। गवर्नमेंट कहाँ पे क्लासिफिकेशन करता है यार? मैंने तो आज तक नहीं देखा गवर्नमेंट को क्लासिफिकेशन करते हुए। और इस केस में भी कहा ये क्लासिफिकेशन वगैरह का है? सर प्लेयर्स का है सर इसमें। नहीं, क्लासिफिकेशन सरकार क्लासिफिकेशन करता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर ये सर एग्जिबिट 1 में सर दे रखा है कि सर मैक्रो इकोनॉमी डाटा ऑन इंडिया सर। तो सर ये जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें सर ये सारी सर जो गवर्नमेंट हैंडल करता है तो सर। नहीं, तुम होटल क्लासिफिकेशन, स्टार रेटिंग्स, तुम जो खुद Yes, sir. लिखे हो तुम्हें खुद नहीं मालूम है क्या बोल रहे हो। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि गवर्नमेंट 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार ये रेटिंग देता है। यस सर। लेकिन इस केस में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि रेटिंग गवर्नमेंट देता है? इस टाइप से कहाँ कुछ है? सर ये थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया था सर। कहाँ से ऐड ऑन कर लिया? अपने मन से ऐड ऑन कर लिया क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मन से नहीं किया सर। तो मतलब ही नहीं होता ना। आप ग्रोथ का देखो, व्हेयर इज द ग्रोथ डेटा? It is clear from the discussion that the Indian hotel industry is growing at a fast rate. फास्ट रेट यस सर। Where is the data? How can I? मैं तो बोल रहा हूँ it is not growing. Now you have to prove me wrong. तो कहाँ है डेटा? कहाँ है इसका? सर अरोमल नेक्स्ट स्लाइड करना सर थोड़ा। नहीं, आप कंक्लूजन पे ले आए हो ना, इससे पहले वाले पे जाओ ना, उसी का कंक्लूजन लाओ हाँ। ना। पहले Yes, वाले sir. पे जाओ। सर उसमें सर मेरे को ग्राफ ऐड करना था बट सर वो ग्राफ ऐड नहीं हो पाया सर। कौन सा ग्राफ? सर वो होटल्स रूम्स और होटल्स का सर। कहाँ पे दिया हुआ है? सर वो मैं शो करता कि सर जो ओयो की जो ग्रोथ रेट है सर वो कैसे ईयर वाइज कैसे डेवलप्ड हुई है सर, कैसे वो इंक्रीज हुई सर। वो कहाँ पे दिया हुआ है? आप लिख रहे हो, देखो आप ओयो पे मत जाओ। आप यू सी व्हाट यू आर राइटिंग इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंक्लूजन। इट इज क्लियर दैट द डिस्कशन from the discussion that the Indian hotel industry is growing at a fast rate. यस सर। ओयो पे तो बात ही नहीं कर रहा, अभी आप इंडियन होटल इंडस्ट्री के बात कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, फास्ट रेट। यस सर। कैसे करके हम समझे इट इज फास्ट रेट? व्हाट इज द डेटा? सर अभी क्या उसका सर अवेलेबल सर उसमें इंक्लूड नहीं है सर। लिखा है तो कोई कुछ सोच समझ के तो किया होगा ना। यस सर। फिर सर वो ग्राफ एड ऑन नहीं कर पाया सर, उसका डाटा में थोड़ा सा एड ऑन नहीं कर पाया सर। ये डाटा कहाँ पे मिलेगा आपको? कहाँ पे है? सर अपने हार्ड कॉपी में सर करा था सर मैंने हाईलाइट, बट सर कहाँ है? हार्ड कॉपी दिखाओ हमारे पास जो रखा। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर ये फास्ट रेट वाला। हाँ, फास्ट रेट वाला। सर फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना सर, फर्स्ट पैराग्राफ इन अगस्त 2017 रितेश अग्रवाल, वो वाला? नहीं सर सर पेज नंबर 2 पे फर्स्ट पैराग्राफ में है सर। बताओ कहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है? Sir, Worth Hotel booking by the 2020 booking were accepted by grow by about 50%. The growth was derived by a rise of disposable income of India. Sir, ये वाली थोड़ी बहुत लाइन। पहला सेकंड पेज में जी कहाँ से बोल दिए यार तुम? प्रॉपर्टी कहाँ पे है ये? कौन सा ये- पैराग्राफ? सर फर्स्ट पैराग्राफ में ही है सर। फर्स्ट पैराग्राफ पे नहीं है, सेकंड पैराग्राफ पे है, द इंडियन होटल इंडस्ट्री। तुम ये कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिख रहे हो इंडियन होटल इंडस्ट्री। हाँ सर वो द इंडियन होटल इंडस्ट्री का सर फर्स्ट पैराग्राफ है सर, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोले थे। हाँ सर सॉरी सर वो 2016 people made 7.2 बिलियन, ये सब है पूरा डेटा। You should have gone through this ना। यस सर। सर मैं नेक्स्ट आगे बोलूंगा सर। नहीं, आगे बोलने की जरूरत नहीं है ना, कंक्लूजन कर लो फिर आगे कहा। why you want to repeat it again and again यार? एक ही चीज को थोड़ी रिपीट करना है। वो इंट्रोडक्शन, चलो इसको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ। नेक्स्ट स्लाइड। Oravel to see, I'm not interested in launch of Oyo. Next, Oyo operations. ठीक है, you can Tarun you have already said, Jishan you can, Jishan आप ये Oyo operation के बारे में बताओ।
Jishan, Oyo operations. Jishan is there? Jishan, 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 open your mic. आ रही है Jishan, सर जीशान, कोई इशू है आपके माइक के साथ? माइक ऑन करिए। सर आई डोंट Arushi, mic is on. sir, I think Ayushi, you can tell. no. आप एक काम करो, ठीक है, जिशान को छोड़ देते हैं। आरोमल शेखर, Yes, sir. about Oyo operations. Sir, operation, sir, operation is, sir, first they acquire room. They acquire room which are neat, tidy, and are in good design. Then they standardize. If the room has all the facilities and all, then they see problems, sir, what problems all are faced by the hotel owners, and then according to problem they rank the hotel. After ranking the hotel, they decide how to price them, and after pricing them they distribute, sir. प्राइसिंग बताओ, किस तरह से प्राइसिंग करता था? Sir, actually I was not given this topic, so I am not thorough, but I have read the cases. So sir, can I हाँ, आरोमल, move कंटिन्यू। to? Yes, sir. इसको So बोलो। yes, sir. बोलो आरोमल, बोलो। Yes, sir. So my topic was, sir, business model. No, I'm not going by your topic, please. I'm not going by your topic. तुम्हारा स्लाइड के हिसाब से मैं नहीं जाऊंगा। Yes, sir. No, sir. I I am talking about next slide, sir. No, not next slide. Please don't move into the next slide. Okay. Tell me about the pricing of rooms. How this pricing was being done. Explain. Sir, pricing of the room is done by according to the problems, sir. According to problems. और स्टैंडर्डाइजिंग किस तरह से होता था वो भी बताओ। Sir, how much rooms are acquired, sir, according to them. Okay. ठीक है, next slide बताओ। Sir, next slide is business model. So, sir, let me tell you what is business model is from which we can generate income. Sir, the OYO generate income with the aggregator model. Sir, for example, if there is 20 rooms in one hotel, then the OYO buys 10 rooms from it and lease it for 1 month in advance. So they have to pay advance payment for 10 rooms in advance, then the hotel owner should name the brand of the hotel by the name of OYO. Then they have to provide all the facilities to the OYO room customer. Then the rooms are uploaded on the website through which you can register, sir. Then I'm going to explain how OYO earns the money. For example, if cost per night is 3,000, OYO get the discount of 50,000. After getting discount of 50,000, OYO get one room for 1,500 rupees. From that, OYO resell it for 800 rupees, and then the profit for the customer is 1,200, and the profit for OYO is 300. So win-win for everyone. Owner is happy, OYO is happy, and the customer is happy. But what are then? कहाँ से आया भाई ये फॉर्मूला? इस केस में कहाँ से आया 50% डिस्काउंट? सर जब सर मैंने केस स्टडी पढ़ा था तो सर बिजनेस मॉडल के बारे में इतना था नहीं, पर सर सुरजॉय सर ने हमें बताया था कि बिजनेस मॉडल जरूरी होता है। तो सर मैं ठीक है, बिजनेस मॉडल आपने बनाया है, कोई बात नहीं है। जी ये सर। जो कैलकुलेशन आया, ये 50% डिस्काउंट वगैरह, ये कहाँ से आया है? सर ये एग्जांपल देने के लिए कि ओयो वालों को कैसे प्रॉफिट अर्न होता है सर, क्योंकि एक्यूरेट तो सर मुझे कहीं मिलेगा नहीं कि वो कितना कमाते हैं। तो पर सर मैंने एक रूम का कितना अगर एग्जांपल मान के चलते हैं एग्जिबिट 6 देख लेते तो मिल जाता आपको, 15% मिलता है वहां पे। सर आइडिया नहीं था सर जितना। बिजनेस मॉडल है भाई, 1 और 2 सबका अपना अपना है रेवेन्यू स्ट्रक्चर। 15% इसमें है, दूसरा वाले में चले जाओ तो आपको दिख जाएगा कितना है, 25% है और 30% है। डील 1 डील 2 पे तो ये सब कहाँ से ले आते हो यार? 50% डिस्काउंट करके फलाना ढिमका। नो सर ये एग्जांपल है सर। नो, डोंट गिव सच एग्जांपल्स ना। एग्जांपल्स दो तो इस केस के थ्रू दो।
इसके ओके थ्रू दे रहे हो यार, अपने हिसाब से थोड़ी बना के कोई दे सकता है। जो ओके केस है सर, उसको टिक करो। ओके सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सर प्रॉब्लम फेस बाय ओयो, सर हाई बर्न रेट। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी ओयो को, जहां जहां ओयो ने अपने वो ओनर से जब डीलिंग कर ली थी, जहां डीलिंग करी, कुछ रूम पूरी कंट्री में जहां कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि कुछ रूम बुक हो रहे थे और कुछ रूम रह जा रहे थे। तो सर उस एक तो एडवांस में पेमेंट भी करनी है और जो रूम भी बच रहा है सर उसका भी एक्सपेंस सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो वो सर एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और सर स्टैंडर्डाइजेशन में सर ये है कि सर जो ओयो ने टारगेट करे थे वो 1 स्टार 2 स्टार रूम थे, तो सर वो इतने अच्छे नहीं थे कि अगर कोई आदमी जाए तो रुक पाए। तो सर ओयो वालों को उस पर भी काम करना था, तो ये एक प्रॉब्लम था। और सर माल प्रैक्टिस ये हुआ था सर, जैसे सर ओयो वालों ने 10 रूम लिए, तो सर उसमें से 5 तो बुक हो जाते थे रूम, पर जो 5 बचे रहते थे वो होटल ओनर क्या करते थे कि उनको जैसे अगर ओयो वेबसाइट पे उनको ऑफर दिखा तो वो तुरंत जाके वो 5 सीट बुक कर देते थे और टोटल 10 सीट बुक हो जाती थी। वो 5 सीट जो उनके कस्टमर आते थे तो उनको भेज देते। तो यही चीज सर पूरे इंडिया में हो रही थी कि ओनर ही खरीद के बेच रहा है, तो सर ओयो वालों को तो सर कहीं प्रॉफिट कहीं लग नहीं रहा था, और एक तो ऊपर से वो बहुत लॉस में थे सर। सर ये पॉइंट मैंने देखे। और सर उसके बाद है सर जो उनने सर जो मुझे सोल्यूशन, सर इन सब का सोल्यूशन जो सर फ्रेंचाइजी मॉडल है सर फ्रेंचाइजी मॉडल। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू। हाँ सर, तो सर ये इनने तो सर इन सब देखा जाए तो सर बहुत लॉस हो रहा था, तो सर वो फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ आ गए सर फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा था कि क्या बोलते हैं, पहले तो वो 20 रूम में से 10 रूम खुद ले रहे थे और 10 रूम वो बेच रहे थे, पर फ्रेंचाइजी मॉडल में उन्होंने क्या किया सर कि 20 के 20 रूम हम लेंगे, रूम भी हम लेंगे, मैनेजमेंट भी, स्टाफ, हाउसकीपिंग, एवरीथिंग विल बी डन बाय द ओयो, and the percentage of booking done by the customer will be given to the owner। तो सर इससे सर बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर माल फंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और सर जो सीट खाली आती थी उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सर जो मेन प्रॉब्लम थी सर कि उनको सर पार्टनरशिप करने ही मिल गया। अब पूरा टेक केयर ओयो को करना है, बस ओनर को अपनी जगह लीज पे देनी है। और ये सर विजार्ड मेंबरशिप कहाँ पे लिखा हुआ है इस केस में? सर हाँ, Wizard उसके बारे में नहीं सर मैं बताता हूँ सर। अपने सर जो केस स्टडी दिया है तो सर उसमें सर 2018 का डाटा है। तो सर जब मैं 2018 का डाटा पढ़ रहा था तो सर उसमें सर ओयो वाले ने एक मेंबरशिप ऐड कर दी थी, ओयो विजार्ड मेंबरशिप। इसमें से सर क्या है कि जो हेलो एक मिनट, पूरा राम कहानी बताने की जरूरत नहीं है। ये केस में है क्या विजार्ड मेंबरशिप? नहीं सर, ये मेंबरशिप है जिसको डिस्काउंट मिलती है सर। नहीं है तो उस पर बात नहीं करने का, जी सर। तो खत्म कर देने का, उस पर नहीं बात करने का। जी सर। तो केस में है वही। नहीं सर पर केस में डिस्काउंट का है तो सर मैंने इसलिए ऐड कर दिया इसमें। नहीं, विजार्ड मेंबरशिप वगैरह अगर नहीं है तो उस पर बात मत करो। ओके सर। एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू ऐड? हाँ सर, इससे सर इनको बहुत इंक्रीज इन मिला सर। इसके बाद उनने सर और उनको ज्यादा जब कंपनी वालों ने सब ये देखा कि इनके पास सही बिजनेस मॉडल है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सर जो इन्वेस्ट करने वाले थे उनने सबने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो सर आगे के सर अभी तो लॉस में, अभी तो पता चलता है कि ये सही बिजनेस मॉडल है, अभी धंधा सही कर रहा है, कैसा के पता चला? क्योंकि सर पता चलता है क्योंकि सर पहले वो आधा अधूरा काम था सर, वो आधा ओनर के आधा पहले। डेटा के साथ बात करो यार, डेटा के ये अपना मनगढ़ंत बातें मत करो, डेटा के साथ बात करो कि इस केस में कहां पे पता चलता है कि दिस मॉडल, जो भी मॉडल आप बता रहे हो या जो भी XYZ मॉडल है, एंड दिस कंपनी इज डूइंग गुड, इसका परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, ये कैसा के पता चलता है? इन दिस केस कहां पे कुछ समझ, कहीं पे कुछ तो होगा। यस सर। हाँ है सर इसके बारे में तो सर इसमें तो नहीं है सर। इसमें नहीं है? अच्छा, एग्जिबिट टीम क्या कहता है? नहीं सर, मैं अपने प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ सर। नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप इधर उधर से ढूंढ ढांड के लाए हो, जी सर। अच्छा दे रहा है रिजल्ट, तो अच्छा रिजल्ट तो एग्जिबिट टीम में ही है।
आपको ये सब चीज करने का जरूरत ही क्या था? इफ यू हैड इंटरप्रेटेड दिस एग्जिबिट 10, आपको मालूम हो जाता है yes it is giving good returns. Sir, I thought everyone will be giving the same thing, so I can do something, anything another than. भाई फिर मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगा यार, मत बोला करो। Sir, you can, sir. I can listen to anything you will say, sir. Don't do this type of things. चलो एनीथिंग इसके बाद वाला कोई बताएगा? एनीवन? नेक्स्ट। चलो ठीक है, आरोपा इट्स ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे। Thank you, sir. नेक्स्ट स्लाइड। Akshay. Yes, sir. अक्षय गुप्ता। Yes, sir. Arumal, please adjust the slide. Arumal, हाँ bro. please adjust the slide. ऊपर नीचे। नहीं है, इतना ही है. Okay. Sir, the first point is the high quality stays under OYO flagship. Sir, developed in 2016, the flagship brand was for customer who wanted high quality stay, that is better quality staying experience. For that, OYO flagship is launched. Then, sir, OYO Townhouse. OYO Townhouse, business class people and millennial targeting model. Sir, in 2017, OYO launched another full inventory but slightly more premium model, the OYO Townhouse. In OYO Townhouse, the OYO redid both the exteriors and the interiors of such properties. OYO Asset Management launch, OAM. OYO Asset Management launch OYO Asset Management is launched with an aim to accelerate its growth. OYO launched OYO Asset Management. अक्षय गुप्ता, एक मिनट, hold on. Whatever you are telling, it's already there. और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। मुझे एक बात बता, तुम्हारे सामने this case study है? Yes, sir. अक्षय गुप्ता, मुझे एक बात बता, एग्जिबिट 10 पे जाओ। Yes, sir. एग्जिबिट 10 पे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, वो वाला हेड पे आओ। Yes, sir. तो 2016 में 17.2 था और 11.8 है 2017 में। Yes, sir. ऐसा क्यों? Sir, 2016 में ये in 2016 this company is new, so it invested more on advertising and sales promotion in a fiscal year than in fiscal year 2017. That's why. क्यों? Why still you are see loss फिर भी है, तो क्यों किया ऐसा, जबकि उसको तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में ज्यादा करना चाहिए था। Sir, but by 2017 fiscal year, OYO becomes a more established brand. So it can, वो अपना अलग जगह पर चीजों में बढ़ा सकते थे जहां पे वो इन्वेस्ट करें rather than advertising. तो उन्होंने यहाँ से कॉस्ट कटिंग करी है और बाकी चीजों में इन्वेस्ट की है। बाकी किस में इन्वेस्ट की है? सर बाकी जैसे रेवेन्यू बढ़ा, सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स बढ़ाए हैं ओयो वालों ने। ये सर 18, जैसे कि सर फिस्कल ईयर 2016 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे 18.7 और फिस्कल ईयर 2017 में जिसे कर दिया गया है 30.5। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज इंक्रीज्ड। यस सर। 3C के बारे में बताओ जरा, 3C के बारे में। सर 16 एग्जिबिट, नहीं 3C के बारे में बताओ मुझे। 3C। यस सर। 3C सर कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, कंपैटिबल रूम्स एंड कस्टमर रिव्यूज। 3C वो तो मुझे भी मालूम है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर इन कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स ओयो ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है कि कस्टमर को किसी भी टाइम पे रूम्स की अवेलेबिलिटी रहेगी और एक प्रेडिक्टेबिलिटी, जो पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी रूम्स के ये बुकिंग को लेकर कि मिलते थे नहीं मिलते थे,
उस चीज को खत्म करने के लिए कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स रहेगी। कंपेटिबल रूम्स में सर इनने स्टैंडर्डाइजेशन किया है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन में जैसे सर इनने रूम्स विथ एयर कंडीशंस विथ टेलीविजन, वाईफाई, फ्री वाईफाई फैसिलिटी, ऐसी चीजें इंक्लूड करी हैं, जिससे रूम्स एक अगर बजट ट्रेवलर, फॉर अ बजट ट्रेवलर ऑल्सो इट इज अफोर्डेबल, अफोर्डेबिलिटी भी है। एंड सर कस्टमर रिव्यू इनने सिस्टम ऐड किया था, तो कस्टमर रिव्यू के लिए इनने क्रिप्टन ऐप निकाला था। क्रिप्टन ऐप में ये होता था सर कि कस्टमर रिव्यूज पूरे इनकी एनालिटिकल टीम को जाते थे, और फिर वो एनालिटिकल टीम उस हिसाब से अपने उसमें एडवांसमेंट या जो भी जरूरत रहती थी करेक्शन करते थे। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। वो तो ठीक है, ये सब है भी नहीं यार, जेन रूम्स, विस्टा रूम्स, ये केस में है ही नहीं, अलग हटा दो ये सब। कंक्लूजन, जिशान, कंक्लूजन बताओ। Yes, sir. Sir. Sir, am I audible? हाँ, you are audible. Yes, sir. Sir, conclusion. कुछ सजेशन बताओ, सजेशन। कंक्लूजन छोड़ो, कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो सजेशन बताओ। अगर if you are not able to talk about conclusion, talk about suggestion, recommendations. Yes, sir. Sir, there is suggestions about you want to चलो ठीक है, ओके। अबूशी, you are there? Yes, sir. थोड़ा बताओ suggestions, what are the suggestions and what are the this case? Sir, suggestions in context to the case, or we can give our own opinion No, as per the information. just stick to the case. Okay, according to the case. Okay. Just a moment, sir. पढ़ के आया करो भाई, पूरा इसका नोट्स वोट्स बना के आया करो। Yes, sir. Sir, at first, the model that OYO had used before, the aggregator model, it had a few. It was causing the company a great loss because they were paying for unnecessarily paying out for the rooms that they were not using. So once they shifted to the franchise model, it also gave them a stake and ownership, and along with that, it also increased their sale percentage by 15%. So that was something that was a problem, and it was addressed by the company, and that's how they overcame it and worked for the betterment of the company. अच्छा, ओके, hold on. Tell me something about this exhibit 1. आपको समझ में आता है exhibit 1? Sure, sir. Just a minute. Exhibit 1. Sir, this is a macroeconomic data that includes the usage of the sum total population of India, the gross domestic product, and the internet user, along with the people who use phone subscribers and internet users. It has shown that there's a gradual increase along with the population and the GDP. There's an increase in the internet users as well as the phone subscribers. For
online portals such as Oyo that are solely based on internet and their functioning is on internet, that adds that is acting as an advantage, since the number of people who use the internet has increased. That gives them a more open market to operate and more consumers that they could attract and increase the business by. ठीक है, Uh, okay. This Yes, sir. ये वाला जो exhibit should have gone into your setting of the context introduction. चलो ठीक है, I'm sorry, sir. हाँ बोलो, yes, carry on. Yeah, so like the data says, like there's a almost like there's a gradual increase, but then that like I said, it gives a scope for a better market and more target audience for Oyo, since they are a wholesale online based business. ठीक है, exhibit 6 open करो. Yes, sir. Exhibit 6. Yeah, sure. And ये जरा बताओ कि rental the profit is coming as 1024. Yes, sir. तो इसके लिए what is the condition? 1024 के लिए what is the main condition? सबसे important, सबसे पहला condition क्या होना चाहिए? क्या है? For the rental profit. हाँ, for this profit, ये कमाने के लिए सबसे important क्या होना है? क्या है? अब इस जैसे exhibit 6 में आपको क्या लगता है सबसे important क्या है? Yes, sir. इतना कमाने के लिए क्या होना चाहिए? There must be some conditions. Yes, sir. What is that? For the rental profits, sir, first off, it also depends on the rate of the room that they offer. Like for the average rate rooms or the monthly and the occupancy that the company has, the sum total of all that makes up the total rental profit that the company makes. Plus, there's the सबसे important क्या है? सबसे important क्या है? इस exhibit में सबसे important क्या है? होना चाहिए हाँ. Lease payment for renting property. No, it is not the top. सबसे number one ये क्या होना चाहिए? Factor क्या होना चाहिए? The number one factor is should be 70% occupancy rate. दिया हुआ है. Third point में दिया हुआ है. Yes, sir. 70% occupancy Why rate. don't you people analyze those exhibits? इतना exhibits किया हुआ है, आपके पास में इतना मसाला था इसमें, वो सब चीज लिखने का जरूरत ही नहीं था. आउट ऑफ द केस जाने की जरूरत ही नहीं थी अगर ये सब एनालाइज कर लिए होते. तो रेवेन्यू परसेंटेज पर बिजनेस मॉडल बनाने के लिए